Good morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. In last lecture, we start with availability, unit 3, chapter 2. Okay, in last lecture, we studied available energy, unavailable energy, general equation of availability, and dead state. Okay, now in this lecture, we start with the numericals on availability. Before start with the numericals on availability, we refer some formulas which we studied in second law of thermodynamics and also in entropy and now in availability. Okay, what are these formulas? Okay, let's see. First formula, delta S, that is change in entropy, is equal to Q upon T. This is a basic formula for change in entropy. Delta S is equal to Q upon T. Okay, second formula, availability. What is availability? Availability, that is a we designated by term availability is a is equal to q1. Q1 is the amount of heat supply minus T naught into delta S. T naught is the surrounding temperature or atmospheric temperature. So A is the availability is equal to Q1 minus T naught into delta S. As we know that delta S is equal to Q by T, so Q is equal to T into delta S. So Q1 is equal to T1 into delta S. So availability formula becomes T1 into delta S minus T naught into delta S. Okay, both the terms delta S is common, take outside, we get availability equation is equal to T1 minus T naught into delta S. So these are this also formula for the availability. Now the formula for unavailability. Unavailability is equal to T naught into delta S. Okay, so delta is the S is the change in entropy for any system, for any source, or for any surrounding. Okay, this is a unavailability or availability formula for the change in entropy. Okay, now the basic formula we studied in change in entropy, that is entropy chapter. Okay, change in entropy for any thermodynamic process, this is the general formula for the entropy. What are the formula? Delta S is equal to mcp ln T2 by T1 plus mr ln P1 by P2. Okay, this is the general equation for change in entropy. Okay, if we consider for the constant pressure process, if process is the constant pressure, then pressure 1 is equal to pressure 2, that is P1 equal to P2. Okay, then the second term mr ln P1 by P2 becomes 0 because ln P1 by P2 for constant pressure process P1 equal to P2. So ln of 1 is a 0. So second term is a 0 for constant pressure process. This is the change in entropy formula for constant pressure, and this as show that this is the general formula for change in entropy. Now heat. Okay, basically heat formula for constant pressure and constant volume is a different. The term is different, only specific heat. For constant pressure it is Cp, for constant volume it is Cv, and the formula for Q is equal to mcp T2 minus T1 for constant pressure. For constant volume it is mcv T2 minus T1. Okay, these are the formulas we use for the numericals of availability. Okay, basically simple formula. यहाँ पे आपके दो ही फॉर्मूला अलग है, अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी, और जो कि एंट्रोपी का फॉर्मूला है वो एंट्रोपी चैप्टर में हुआ है, और जो कि क्यू वाला फॉर्मूला है वो हमारा फर्स्ट यूनिट से हमारा चालू फॉर्मूला है. ओके, दैट इज द हीट. Okay, now we start with the numericals on availability. Okay, first numerical we start with the 1 kg of air at 500 Kelvin is heated reversibly at constant pressure till 2000 Kelvin. Find the available energy and unavailable energy. Take Cp equal to 1.005 kilojoule per kg Kelvin. Surrounding temperature T नॉट इक्वल टू 300 केल्विन. ओके, अभी न्यूमेरिकल पढ़ लिया, एक बार न्यूमेरिकल पढ़ ले फिर से आप. ओके, न्यूमेरिकल देख लीजिए एक बार, यहाँ पे क्या क्या दिए देखो एक बार न्यूमेरिकल में. ओके, 1 kg ऑफ एयर मतलब क्या दिया है, मास ऑफ एयर. सो m इक्वल टू 1 kg एट 500 केल्विन. सो टेम्परेचर 1 इज इक्वल टू 500 केल्विन. ओके, T1 इक्वल टू 500 केल्विन इज हीटेड. ओके, तो प्रोसेस कौन सी है अभी यहाँ पे, हीटेड रिवर्सिबल एट कांस्टेंट प्रेशर. मतलब कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस. ओके, सो P1 इक्वल टू P2 है, बराबर है प्रेशर 1 इक्वल टू P2. ओके, टिल 2000 केल्विन म्हणजे आफ्टर
कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग आपका टेम्परेचर कितना मिल रहा है 2000 केल्विन। सो T2 इक्वल टू कितना दिया है 2000 केल्विन। ओके, उसके बाद पूछा है अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी। ओके, टेक सीपी तो दिया है आपको 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज 3000 केल्विन। अभी निकालना क्या है आपको, व्हाट इज अवेलेबल एनर्जी, फाइंड अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी। ओके, तो अभी आपके पास अवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, Q-Q1 माइनस टी नॉट इंटू डेल्टा एस। ओके, अभी इस फॉर्मूले में अवेलेबल एनर्जी निकालना है। ओके, तो अवेलेबल एनर्जी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, Q नहीं है मेरे पास, अमाउंट ऑफ हीट। ओके, और डेल्टा एस दैट इज चेंज इन एंट्रोपी नहीं है। ओके, तो Q पहले निकालेंगे, उसके बाद डेल्टा एस निकालेंगे। ओके, उसके बाद अवेलेबल एनर्जी निकालेंगे। तो पहले Q निकालना है। Q का फॉर्मूला क्या होगा, अभी प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट का फॉर्मूला क्या होगा mCp T2 माइनस T1। ओके, मास आपको पता है 1 kg, Cp आपको पता है 1.005। ओके, इनटू टेम्परेचर T2 आपको पता है 2000 और माइनस T1 भी पता है आपको 500। ओके, तो mCp T2 माइनस T1 फॉर्मूले डाल दिया तो मुझे Q का हीट मिल गई 1507.5 किलो जूल पर केजी। ओके, क्योंकि Cp किस में है, किलो जूल में है, तो हीट भी किस में मिलेगी, मुझे किलो जूल में मिलेगी। तो Q मिल गया। अभी निकालना क्या है, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, जनरल इक्वेशन mCp ln T2 बाई T1 प्लस mR ln P2 बाई P1 बराबर है P1 बाई P2। लेकिन प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट प्रेशर है, बराबर है। सो ln P1 बाई P2 मतलब क्या होगा, ln 1 मतलब क्या होगा, 0। सो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड वाली टर्म 0 होगी। सो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, m इक्वल टू 1 Cp पुट करूंगा, ln T2 बाई T1 पुट करूंगा प्लस 0 बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, तो मुझे चेंज इन एंट्रोपी मिल गई। यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी कितने मिल गए मुझे, 1.3932 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओके, तो Q निकाला, अमाउंट ऑफ हीट, चेंज इन एंट्रोपी निकाली। अभी क्या निकालना है, अवेलेबल एनर्जी। सो अवेलेबल एनर्जी इक्वल टू Q माइनस टी नॉट इंटू डेल्टा एस। Q पता है, Q डाल दिया। टी नॉट आपको सराउंडिंग टेम्परेचर दे दिया है 300 केल्विन, तो टी नॉट पता है। डेल्टा एस निकाला है 1.3932, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, अवेलेबल एनर्जी। तो अवेलेबल एनर्जी मुझे कितनी मिली, 1089.5 किलो जूल पर केजी। तो ये क्या मिल गया मुझे, अवेलेबल एनर्जी। अभी निकालना क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, टी नॉट इंटू डेल्टा एस, टी नॉट इंटू डेल्टा एस। ओके, टी नॉट मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर जो दिया है 300 केल्विन और डेल्टा एस जो मैंने निकाला है 1.3932, तो मुझे अनअवेलेबल एनर्जी मिल जाएगी। अनअवेलेबल एनर्जी कितनी मिलेगी, 417.97 किलो जूल पर केजी। तो ये हो गया मेरी अनअवेलेबल एनर्जी। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किया, अवेलेबल एनर्जी अनअवेलेबल एनर्जी। पहले तो मैंने फॉर्मूला लिया और फॉर्मूला में जो जो वैल्यू निकालनी है वो पहले वैल्यू निकाली, उसके बाद वो वैल्यूज निकाल दी अवेलेबल एनर्जी की और अनअवेलेबल एनर्जी की। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, एक बार न्यूमेरिकल पढ़ लीजिए। ओके, अ सिस्टम ॲट 450 केल्विन. ओके, सिस्टीमचं टेम्परेचर किती आहे 450 केल्विन. रिसिवर्स 225 किलोजूल पर सेकंड ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स. ओके, तो सिस्टम है जिसका टेम्परेचर 450 केल्विन है, वो एब्सॉर्ब कर रहा है हीट फ्रॉम सोर्स से, रिसीव कर रहा है हीट फ्रॉम सोर्स से, जो कि सोर्स का टेम्परेचर कितना है 1500 केल्विन है. ओके, एंड द टेम्परेचर ऑफ बोथ द सिस्टम एंड सोर्स रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर प्रोसेस. सिस्टम और सोर्स का टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर प्रोसेस. ओके, तो अभी निकालना क्या है, नेट चेंज इन एंट्रोपी, अवेलेबल एनर्जी एंड डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी. टेक टी नॉट मीन्स सराउंडिंग टेम्परेचर. ओके, दैट इज 300 केल्विन. ओके, अभी आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, सिस्टम है जिसको हीट कौन सप्लाई कर रहा है, सोर्स सप्लाई कर रहा है. ओके, जब सोर्स अपनी हीट सिस्टम को दे रहा है मतलब सोर्स हीट रिजेक्ट कर रहा है, मतलब सोर्स की एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज होगी. सिस्टम जो है, सिस्टम क्या कर रहा है, हीट एब्सॉर्ब कर रहा है फ्रॉम सोर्स से, तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है. बिकॉज एंट्रोपी इज रिलेट विथ हीट. एज हीट इज सप्लाई एंट्रोपी विल इंक्रीज, एज हीट इज रिजेक्टेड एंट्रोपी विल डिक्रीज.
ओके, सिमिलर कंसेप्ट है। यहाँ पे सोर्स अपनी हीट रिजेक्ट कर रहा है, मतलब सोर्स की एंट्रोपी चेंज होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। और सिस्टम है जो कि हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, मतलब उसकी एंट्रोपी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो इन दोनों की एडिशन मतलब क्या होगा, आपका नेट चेंज इन एंट्रोपी होगी, बराबर है। तो उससे मुझे नेट चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। उसके बाद अवेलेबल एनर्जी, अभी अवेलेबल एनर्जी किसकी निकालनी है, दोनों की निकालनी है। मतलब अवेलेबल एनर्जी फॉर सिस्टम एंड अवेलेबल एनर्जी फॉर सोर्स। ओके, फिर सोर्स की कितने अवेलेबल एनर्जी है और सिस्टम की कितने अवेलेबल एनर्जी है, तो उनके दोनों का डिफरेंस मतलब क्या होगा, डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी। समझ गए आप? ओके, तो यहाँ पे अभी न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है देखो। सोर्स टेम्परेचर दिया है आपको 1500 केल्विन। ओके, सोर्स मतलब टॉप ले ऊपर रहता है तो उसका T1 लिखा 1500 केल्विन सोर्स टेम्परेचर। ओके, सिस्टम टेम्परेचर कितना है 450 केल्विन, मतलब T2 कितना दिया है आपको 450 केल्विन दिया है, T1 दिया है, T2 दिया है। ओके, उसके बाद डायरेक्टली सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन। ओके, अभी देखो यहाँ पे और एक टर्म दिए हीट सप्लाई, कितना दिया है 225 किलो जूल पर सेकंड, बराबर है। लेकिन सोर्स ने हीट क्या किया है, रिजेक्ट किया है। ओके, तो क्या होगा, हीट गिवन बाय सोर्स Q इज इक्वल टू 225। लेकिन हीट का एज पर साइन कन्वेक्शन, अगर हीट एब्सॉर्ब किया जाता है तो पॉजिटिव होता है, अगर हीट रिजेक्ट किया जाता है तो निगेटिव हो जाता है। यहाँ पे सोर्स ने हीट क्या किया है, रिजेक्ट किया है, सप्लाई किया है। तो सोर्स का हीट क्या होगा, माइनस होगा, -225 किलो जूल पर सेकंड। लेकिन सिस्टम की हीट सोर्स क्या होगी, हीट रिसीव्ड बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब की, एज पर साइन कन्वेक्शन हीट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो हीट का फॉर्मूला क्या होगा 225 किलो जूल पर सेकंड। ओके, तो सोर्स की हीट निगेटिव में आ गई और सिस्टम की हीट क्या हो गई, पॉजिटिव आ गई, क्योंकि सोर्स ने हीट रिजेक्ट की है और सिस्टम ने हीट एब्सॉर्ब की है, बराबर है। अभी चेंज इन एंट्रोपी, अभी मैं निकालता हूं नेट चेंज इन एंट्रोपी मतलब क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी फॉर सोर्स और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, दोनों की एडिशन। ओके, तो मैं पहले निकालता हूं चेंज इन एंट्रोपी फॉर सोर्स। ओके, लेकिन सोर्स का फॉर्मूला क्या होगा चेंज इन एंट्रोपी का, Q/T। ओके, Q तो आपका सोर्स का कितना है -225। ओके, और टेम्परेचर ऑफ सोर्स कितना है 1500, तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर सोर्स मिल गया मुझे -0.15 किलो जूल पर सेकंड। ओके, सिमिलरली सिस्टम का चेंज इन एंट्रोपी Q/T। ओके, हीट सप्लाई फॉर सिस्टम 225 प्लस है। ओके, और टेम्परेचर कितना है 450 केल्विन, तो चेंज इन एंट्रोपी फॉर सिस्टम मिल गया 0.50 किलो जूल पर सेकेंड। ओके, तो नेट चेंज ऑफ एंट्रोपी मतलब क्या होगा, डेल्टा एस सोर्स प्लस डेल्टा एस सिस्टम। ओके, दोनों की क्या करना है, यहाँ पे एडिशन करना है, तो मुझे मिलेगी नेट चेंज ऑफ एंट्रोपी इक्वल टू कितना मिला 0.35 किलो जूल पर सेकंड। ये क्या मिल गया मुझे, नेट चेंज ऑफ एंट्रोपी। ओके, अभी मुझे निकालना है अवेलेबल एनर्जी। ओके, अभी अवेलेबल एनर्जी सोर्स की निकालनी है और सिस्टम की निकालनी है। ओके, तो अवेलेबल एनर्जी फॉर सोर्स, ओके, तो अवेलेबल एनर्जी का और एक फॉर्मूला था T1 - T0 इंटू डेल्टा एस। ओके, तो डेल्टा एस सोर्स का कितना आ गया था मेरा -0.15। यहाँ पे अवेलेबल एनर्जी निकालना है, इसलिए वो माइनस का क्या लेंगे हम, प्लस लेंगे। सो डेल्टा एस यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोर्स का 0.15। ओके, T1 मतलब सोर्स का टेम्परेचर कितना है 1500 माइनस T0 मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर 300, तो मुझे अवेलेबल एनर्जी ऑफ हीट सोर्स मिल गई। ओके, यहाँ पे सिर्फ देखो जो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सोर्स है निगेटिव आई है, लेकिन अवेलेबल एनर्जी निकालने वक्त हमें वो क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। ओके, तो मुझे अवेलेबल एनर्जी ऑफ हीट सोर्स मिल गई। अभी निकालना है अवेलेबल एनर्जी फॉर सिस्टम। ओके, तो सिस्टम का फॉर्मूला आ गया टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर इंटू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। डेल्टा ऑफ एस ऑफ सिस्टम कितना है 0.50। ओके, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कितना है 450 और सराउंडिंग टेम्परेचर 300। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद मुझे मिलेगी अवेलेबल एनर्जी ऑफ सिस्टम विच इज इक्वल टू कितना मिला 75 किलो जूल पर सेकंड। ओके, अभी लास्ट में निकालना है डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी। डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी मतलब क्या होता है, अवेलेबल एनर्जी ऑफ सोर्स माइनस अवेलेबल एनर्जी ऑफ सिस्टम A1 - A2। तो मुझे मिली डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी 82.5 किलो जूल पर सेकंड। ओके, तो इसमें क्या मिला आपको, कैसे समझ आ गया, आपको पहले नेट चेंज ऑफ एंट्रोपी निकालनी है, उसके लिए चेंज इन एंट्रोपी फॉर सोर्स और चेंज इन एंट्रोपी फॉर सिस्टम निकालनी पड़ी। ओके, उन दोनों का एडिशन करने के बाद मुझे नेट चेंज ऑफ एंट्रोपी मिली। उसके बाद अवेलेबल एनर्जी ऑफ सोर्स निकाला, उसके लिए टेम्परेचर ऑफ सोर्स
माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इनटू चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सोर्स। ओके, उसके बाद सिमिलरली सिस्टम से निकाला। ओके, और दोनों का माइनस करने के बाद मुझे क्या मिली, डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी मिल गई। ओके, समझ गए। लास्ट न्यूमेरिकल एक बार देख लो आप, न्यूमेरिकल क्या क्या दिया है यहां पे। कैलकुलेट द डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी। ओके, सिमिलर कंसेप्ट है, डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी निकालना है, जो कि हमने वहां पे देखा था पिछली बार। ओके, डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सबकी अवेलेबल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, बराबर है। तो क्या है यहाँ पे, कैलकुलेट द डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी व्हेन 20 kg ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो मास 1 दिया है आपको 20 kg और टेम्परेचर 1 दिया है 90 डिग्री सेल्सियस, मिक्सेस विथ 30 kg ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद M2 दिया है 30 kg और T2 दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, द प्रेशर बीइंग टेकन एज अ कांस्टेंट। ओके, प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट प्रेशर है, P1 इक्वल टू P2 है। ओके, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज 10 डिग्री सेल्सियस, दैट इज T नॉट। ओके, सराउंडिंग के लिए क्या लिखते हैं हम, T नॉट इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। एंड CP ऑफ वाटर दिया है 4.18 किलो जूल पर kg केल्विन। फर्स्ट तो गिवन लिया। ओके, पहले जो मास था 20 kg ऑफ वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस, और जो दूसरा था वो 30 kg एट 30 डिग्री सेल्सियस। दोनों वाटर का क्या करना है, मिक्स करना है। जो हायर टेम्परेचर वाला वाटर था उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, और जो लोअर टेम्परेचर वाला वाटर था उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, बराबर है। दोनों क्या हो गए, एक आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में आएंगे। जैसे कि गर्म पानी है और ठंडा पानी है, दोनों पानी को मिक्स करेंगे तो दोनों क्या होंगे, बाद में एक टेम्परेचर लेवल पे मेंटेन हो जाएगी कांस्टेंट टेम्परेचर में। मतलब जो गर्म पानी था वो ठंडा हो जाएगा और जो ठंडा है वो गर्म हो जाएगा, और दोनों एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अटेंड करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे सिमिलर कंसेप्ट है, बराबर है। यहाँ पे हम लेंगे। ओके, तो अभी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, देखो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को मैंने पूरे केल्विन में किया। T1 90 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में करने के बाद 363 केल्विन। T2 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 303 केल्विन। केल्विन में कैसे करते हैं, तो उसको 273 से प्लस कर देते हैं, उसके बाद मुझे क्या मिलता है, केल्विन में मिल जाता है। ओके, तो T नॉट 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 370 283 केल्विन। ओके, तो यहाँ पे मुझे सब टेम्परेचर मिल गए केल्विन में। ओके, तो अभी सोल्यूशन में क्या करता हूँ मैं, पहले T3 टेम्परेचर लेता हूँ। T3 टेम्परेचर कहाँ का है, जो टेम्परेचर है दोनों वाटर मिलने के बाद जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा वो टेम्परेचर क्या है मेरा, T3 है। ओके, अभी मैं एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखता हूँ, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। हीट गिवन बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय कोल्ड वाटर। मतलब जितनी हॉट वाटर ने हीट सप्लाई की है उतनी ही कोल्ड वाटर क्या करेगा, हीट एब्सॉर्ब करेगा। जैसे कि गर्म पानी ठंडे पानी में डालोगे तो गर्म पानी अपनी हीट ठंडे पानी को देगी, और ठंडे पानी क्या करेगी, कोल्ड वाटर क्या करेगा, हीट जो है गर्म हॉट वाटर की वो एब्सॉर्ब करेगा। मतलब हीट गिवन बाय हॉट वाटर इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय कोल्ड वाटर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे वैसा ही है, हीट गिवन बाय M1 kg ऑफ वाटर इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब बाय M2 kg ऑफ वाटर, बराबर है। हीट का फॉर्मूला क्या है, MCP T2 माइनस T1। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा M1। ओके, तो फर्स्ट M1 मास के लिए है तो M1 इंटू CP इंटू, अभी टेम्परेचर डिफरेंस किसका लेना है, तो हॉट वाटर का टेम्परेचर तो मैक्सिमम होगा, सो वो पहले लेंगे हॉट वाटर टेम्परेचर, माइनस कितना होगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो आने वाला है दोनों मिक्स करने के बाद, मतलब T3, मतलब T1 माइनस T3 होगा, इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा, M2 CP इंटू टेम्परेचर डिफरेंस लेना है, तो कोल्ड वाटर टेम्परेचर तो लोअर होगा। ओके, तो उसको हम बाद में लेंगे, और पहले क्या लेंगे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो मिलने वाला है वो कोल्ड वाटर से ज़्यादा होगा, तो क्या होगा T3 माइनस T2, तो M2 CP T3 माइनस T2। तो ये दोनों इक्वेशन लिख दिए मैंने। ओके, तो उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मास पता है आपको, CP ऑफ वाटर पता है, T1 पता है, T2 पता है, सिर्फ पता क्या नहीं आपको इसमें T3। ओके, तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें मुझे क्या मिलेगा, T3 एज टेम्परेचर इज इन केल्विन, तो मुझे T3 भी किस में मिलेगा, केल्विन में मिलेगा। तो T3 मिल गया मुझे 327 केल्विन, बराबर है।
तो मुझे T3 मिल गया, बराबर है। अभी मैं निकालूंगा चेंज इन एंट्रोपी, ओके। तो मुझे अभी 3 की चेंज इन एंट्रोपी निकालनी है। एक तो पहले M1 kg ऑफ वाटर, उसकी एंट्रोपी विथ सराउंडिंग, मतलब S1 माइनस एस नॉट निकालना है मुझे। उसके बाद निकाला है M2 kg ऑफ वाटर विथ सराउंडिंग, मतलब S2 माइनस एस नॉट निकालना है। उसके बाद निकालना है मुझे इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा वाटर, उसका मतलब S3 माइनस विथ सराउंडिंग एस नॉट। मुझे S1 माइनस एस नॉट निकालना है, S2 माइनस एस नॉट निकालना है और S3 माइनस एस नॉट निकालना है, ओके। तो सिमिलरली फॉर्मूला यूज किया जनरल एंट्रोपी इक्वेशन, MCP ln T2 by T1 plus MR ln P1 by P2. Since process is a constant pressure process, so second term will be 0. So directly we put S1 minus S0 is equal to MCP ln T2 by T1, okay. लेकिन यहाँ पे देखो, अभी एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी किसकी निकाल रहा हूं मैं, M1 kg ऑफ वाटर विथ सराउंडिंग, ओके। सो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे कौन सा है, T1 है, ओके। और जो सराउंडिंग टेम्परेचर कौन सा है, T0 है। तो MCP ln T1 by T0, ओके। तो मुझे T1 पता है, T0 पता है, मास पता है, CP पता है, तो मुझे S1 माइनस एस नॉट मिला, ओके, 20.813। सिमिलरली मैं S2 माइनस एस नॉट निकालूंगा, MCP ln, अभी इसमें मैक्सिमम टेम्परेचर T2 है तो T0 नीचे T2 बाय T0, ओके। MCP पुट किया, ln T2 303 है, T0 283 है, तो S2 माइनस एस नॉट मिला मुझे 8.563 किलो जूल पर केल्विन, ओके। सिमिलरली आफ्टर इक्विलिब्रियम उसकी चेंज इन एंट्रोपी विद सराउंडिंग निकालना है, मतलब S3 माइनस एस नॉट, तो MCP ln T3 अपॉन T0 उसका निकालेंगे हम, तो S3 माइनस एस नॉट मिला मुझे 30.203, ओके। तो सबकी मैंने चेंज इन एंट्रोपी निकाली, ओके। तो नेट चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, तीनों की क्या होगी, एडिशन हो जाएगी, ओके। तो तीनों S1 माइनस एस नॉट प्लस S2 माइनस एस नॉट प्लस S3 माइनस एस नॉट, तीनों की एडिशन करूंगा तो मुझे नेट एंट्रोपी चेंज मिल गई 0.979 किलो जूल पर केजी। तो ये मुझे क्या मिला, यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी मिल गई, ओके। अभी डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी करना है, ओके। तो डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है, T0 इंटू डेल्टा एस, ओके। T0 आपको पता है 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना होता है 283 केल्विन, ओके। तो 283 इंटू डेल्टा एस नेट एंट्रोपी चेंज दैट इज 0.979, तो मुझे मिलेगा डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू 281.952 किलो जूल, ओके। तो ये हो गई मुझे डिक्रीज इन अवेलेबिलिटी, ओके। तो तीनों टाइप के न्यूमेरिकल ये है, इसी हिसाब से आपको न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। ये तीनों टाइप अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स है, एक बार आप फिर से ध्यान से लेक्चर्स देख लीजिए, ओके। थैंक यू।